Assalamu alaikum, sat sri akal, namaste or adab, and welcome to the ITV Live Homeopathic Herbal Show. I'm your host Sandis, and with me I have homeopathic herbal doctor, Dr. Iftikhar Chaudhary. You can call Dr. Iftikhar Chaudhary for a free consultation at 718-396-3600, or you can log on to the website to see what kind of medicines he has. The website is www.homeopathicusa.net. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. Wa alaikum salam. Good afternoon. How are you? I'm doing good. How are you? Good. Acha, theek hai. As always on the show, we always start off with emails, which gets the show going. So we're going to start off with emails. The first email is, Assalamu alaikum, Dr. Sahab. I am 61 years old and I have severe neck pain. Can you recommend something for that? Yeah, definitely. If they diagnose and doctors and everything is okay, sometime if you feel pain, but the result doesn't show anything. So for that, I recommend Thera oil, that is a massage oil, and then supplement. I would recommend Joint Formula. That is a combination of herbs, and it has haldi also. Turmeric is very good anti-inflammatory and for pain. Achha. And homeopathic arnica, there's a drops comes, like you take 10-15 drops 3 times a day. Achha. And before go to sleep, and they should massage the Thera oil. And take Joint Formula and L-arnica drops, and that will be fine for them. It will be good. Okay, ठीक है. तो चलते हैं next email की तरफ. This viewer writes, Namaskar, Dr. Chaudhary. My son is 14 years old and he keeps on throwing up and it's affecting his weight. Can you recommend something for that? Yeah, definitely he must have a problem with the stomach. And what happens when food not digested well, and sometimes teenagers, they avoid eating also because of gaining weight. They don't want to gain weight, so they just don't want to eat, So that's the other thing. So for them, they should go to the doctor for checkups and all the diagnosis, and then in homeopathic, I would recommend Alpha Tonic. Is very good. It's a sweet syrup. They take 1 spoon 3 times a day, and Digestive Formula. Achha. That is very good for digestion. So before food, they take digestion tablet, 2 tablets every time they eat, Achha. and Alpha Tonic. Achha. That will helpful for them. Yes. Okay. ठीक है, तो चलते हैं दूसरी email की तरफ. This viewer writes, Hello Dr. Chaudhary, I'm 34 years old and I recently found out that my spinal cord is curved. Can you recommend something for that? So ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं spinal cord को, ये जैसे curved हो जाती है ना कभी-कभी, तो इसके लिए क्या? तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइक अगर बट यूजुअली जॉइंट फार्मूला विल हेल्प देम टू मेक देम द जॉइंट्स एंड बोन्स स्ट्रांग. एंड अगर अपर बॉडी वेट उनका ज़्यादा है तो भी हो जाता है. या कुछ ज़्यादा बैग्स वगैरह हैवी उठा के जैसे काफ़ी टाइम से तो उस पोजीशन में ऐसे आ जाते हैं. और भी वजह होती है कि अगर उनका वेट बहुत कम है तो भी कि बोन बिल्कुल स्लिम लोग होते हैं और कंप्यूटर पे बैठते हैं या रीड करते हैं या ऐसे तो बिल्कुल ऐसे कुबड़े होके बैठ जाते हैं. तो वो आदत हो जाती है और उसकी वजह से भी वो और ऑफ कोर्स लिगामेंट्स वगैरह भी और बोन्स भी वीक होती हैं, उसकी वजह से ये हो जाता है. अच्छा. तो एलोपैथिक में तो मोस्टली सर्जरी रेकमेंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर डॉक्टर ने सर्जरी रेकमेंड की है उससे पहले अगर आप जॉइंट फार्मूला ट्राई कर लें और ऑयल की मालिश करें, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें. अगर बहुत ही स्किनी है तो वेट गेन करने से भी हेल्प होती है कि आपके मसल्स होंगे तो देन इट विल सपोर्ट द बोन्स. अच्छा, हाँ जी, ठीक है. और ये कभी-कभी सिटिंग पोजीशन से भी होता नहीं, या जैसे आप अभी बात कर रहे थे कोई लोग होते हैं कि कंप्यूटर पर बैठते हैं या जहाँ भी बैठते हैं ऐसे करके बैठ जाते हैं. तो थोड़ा सा बताएं सीधा बैठने का स्टाइल, ऐसा कुछ बताएं. बिल्कुल कमर को सीधा करके बैठना चाहिए. अगर कंप्यूटर पे भी है ऐसे झुक के ऐसे नहीं बैठना चाहिए. और स्पेशली औरतें जो है वो अपना जो बैग्स वगैरह जो कैरी करते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. जी. कि आप अगर लेफ़्ट शोल्डर में इतना हैवी बैग है 10-15 पाउंड तक हो जाता है अक्सर, तो वो ऐसे फिर उनको प्रेशर पड़ता है इस तरफ, तो पूरा जैसे मतलब बैलेंस नहीं रहता शोल्डर का. और अगर इस तरह लॉन्ग टाइम रहे तो देन इज़ अ प्रॉब्लम. अच्छा. तो चाहिए कि बैग्स को हल्का रखें जितना भी ज़्यादा हो सकता है. अच्छा. और दूसरा हाई हील पहनने से भी कमर में प्रॉब्लम होती है. अगर ज़्यादा हाई हील है तो आपका पोस्चर सही नहीं होता. ऐसे आप जैसे कोई फीलिंग होती है जैसे कोई पुश कर रहा है आपको. जी. तो उससे फिर स्ट्रेन होता है बैक पे. अच्छा. और अगर ये लॉन्ग टाइम रहे तो इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम देन. सो रादर देन
गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आप हील ना पहने इतनी ज़्यादा ऊंची जी। तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अच्छा। और जिन लोगों को दर्द वगैरह होते हैं, पेन्स होते हैं बैक में या शोल्डर में या, तो उनको ये चाहिए कि एक तो दूध का इस्तेमाल करना शुरू करें। अक्सर लोग दूध नहीं पीते कि जी ओवरवेट हो जाएंगे, तो ये नहीं होता। वैसे वो सोडे जूस पी लेंगे लेकिन दूध नहीं पिएंगे। जी। तो आपको कैलोरीज जो है वो इनटेक जो है ना उसको कंट्रोल में करना है। अच्छा। ये नहीं होता कि आपने दूध पिया तो आपका वेट बढ़ेगा या कोलेस्ट्रॉल, या अगर बटर खाएंगे तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें है कि आपकी टोटल कैलोरीज जो है उसको आपने कंट्रोल में करना है। जी। और हर ग्रुप का जो फूड है उसको आपने यूज़ करना है ताकि आपकी कोई कमी ना रह जाए। फ्रूट्स भी खाएं, प्रोटीन्स भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाएं, फैट्स भी खाएं, और वाटर का भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जी। तो अगर आप बैलेंस फूड खाएंगे, क्वांटिटी कम रखें, कैलोरीज इनटेक जो है कम रखेंगे, तो उससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा फिर। अच्छा जी। और अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो वो फैट में तब्दील हो जाती है बॉडी में। जी। तो दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, 1-2 गिलास रोज़, और उससे कैल्शियम की आपकी कमी पूरी हो जाती है। जी। और रात को जब आप घर आते हैं काम से वापसी पे, तो अगर आप हॉट शावर लें और टब में बैठें 10 मिनट, थोड़ा मसाज करें, बॉडी को रिलैक्स करें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे आपको नींद भी अच्छी आती है और आपके जो मसल्स टेंस हुए होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आप हेल्दी रह सकते हैं। जी। और अगर ये नहीं कि आपको पेन हुआ तो पेन किलर खा लिया, लेकिन बाकी जो चीज़ें ना करने से। और दूसरे अक्सर अभी मेरे जहन में आई बात कि एड़ी में दर्द होता है लोगों को बहुत ज़्यादा, एड़ी में, हील में। हाँ जी। और वो भी एक प्रॉब्लम है कि हील पे सारा वज़न होता है आपका पूरी बॉडी का। तो अगर आपका ओवरवेट है और हील दर्द कर रही है, तो एक तो वज़न का भी आप कम करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि आप घर में जो जब होते हैं तो जूते या चप्पल के बगैर जो वॉक करते हैं ना फर्श पे, या कारपेट भी है फिर भी, लेकिन वो आपका जो हील को काफ़ी प्रेस करता है। अच्छा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हील पेन के। अच्छा। तो जब भी घर में हो आप वो स्पंज के चप्पल पहनने चाहिए थिक, ताकि आपको कुशन रहे हील और फर्श के दरमियान। और अगर जब आप कुकिंग करती हैं किचन में, तो उसमें एक मैट्स मिलते हैं ज़रा हैवी किस्म के, तकरीबन 1 इंच थिक होते हैं। अच्छा। और वो जहाँ आप खड़े रहते हैं वहाँ मैट डाल दें, तो उस पर खड़े रहा करें। अच्छा। तो उससे भी आपके जो एड़ियों में प्रेशर नहीं आएगा। और क्योंकि फर्श होता है और एड़ी अगर उसमें कोई बीच में कोई चप्पल या कुशन नहीं है तो वो काफ़ी प्रेस करता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं होता सिर्फ इसी वजह से। और गलत जूते जो हैं, जो अगर सपोर्ट के जूते नहीं है, बहुत ही हार्ड किस्म के जूते, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। जी। तो ये चीज़ें, और अक्सर देखा गया कितने पेशेंट आते हैं कि वो इतना टेस्ट भी करा लिए, एवरीथिंग इज़ टेकिंग पेन किलर, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। जी। तो ये जो 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, अगर इनको टेक केयर करेंगे तो वो हील का पेन जो है ठीक है। और थेरा ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर मसाज और पेन के लिए। अगर रात को सोते वक्त पैरों में लगा लें, एड़ियों में लगा लें, तो और प्लस ये जो प्रिकॉशंस बताएं अगर इस पर करें तो इट विल बी फाइन। ओके। हाँ जी। आई थिंक ये आपने बहुत दिलचस्प बात की, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। तो हम लेडीज़ हील्स पहनते हैं ना, कभी कभी हाइट बढ़ाने के लिए, कभी कभी अच्छे लगने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके हील पेन है तो इतनी ज़्यादा हील्स मत पहनिएगा, क्योंकि आपके स्पाइन को भी फ़र्क पड़ता है। राइट, आप कह रहे थे पहले। हाँ, और ये आपने अच्छी बात की, क्योंकि हम कभी कभी फ्लैट जूते पहनते हैं ना, तो ज़्यादा फ्लैट जूते भी नहीं अच्छे होते। राइट, बिल्कुल ही थिन से वो सही नहीं, उससे प्रेशर पड़ता है फिर एड़ी पे। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक आज कुछ नया सीखने को मिला है। तो अभी ईमेल से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं। आजकल टायर्डनेस बहुत हो जाता है मर्दों को, औरतों को। और जब कि हम सोते भी हैं ठीक 8 आवर्स या 6 आवर्स एटलीस्ट स्लीप लेते हैं, लेकिन फिर भी ये टायर्डनेस क्यों रहता है हमारी बॉडी में, हमारी आंखों में दिखता है, हमारे चेहरे पे दिखता है? हाँ जी, इसकी बहुत सारी वजह हैं। देयर सो मेनी रीज़न फॉर दैट। तो एक तो ये है कि ओवर वर्क करने से भी होता है, और प्रॉपर फूड और टाइम पे खाना ना खाने से भी होता है। अगर इवन यंग लोग हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट के बगैर चले जाते हैं काम पे जी। और या स्कूल चले जाते हैं, तो वहाँ फिर उनको भूख लगती है, फिर वो वहाँ जंक फूड खाते हैं। तो पूरी सुबह का नाश्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फ्रूट भी खाने चाहिए आपको, जो भी आपका रूटीनली जो खाते हैं नाश्ते में। नाश्ता करके अगर आप जाएंगे काम पे, स्कूल, जहाँ भी, तो आपको एनर्जी रहेगी बॉडी में।
और टाइम पे लंच करें, फिर डिनर करें। यहाँ क्या होता है कि डिनर जो है बहुत हैवी हो जाता है, तो उससे स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। स्टमक प्रॉब्लम की वजह से भी अगर आप खाना खाते भी हैं तो हजम नहीं होता, और वो मतलब फिर आप टायर्ड फील करते हैं, और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है। दूसरा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, या टेंशन, स्ट्रेस अगर वो है तो उसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आएगी। और अगर आप प्रॉपर नींद, वैसे सो रहे हैं 8 घंटे लेकिन वो साउंड स्लीप नहीं आई आपको, तो सुबह उठेंगे तो आपको टायर्ड फील करेंगे। तो एक तो डॉक्टर के पास चेकअप कराएं आप, अगर इस तरह की फीलिंग है। देयर सो मेनी अदर रीजंस आल्सो, कि अगर थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकता है, और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टायर्डनेस के। तो उसके साथ साथ वुमेन के लिए कुछ सप्लीमेंट लेने चाहिए उनको। फीमेल फार्मूला है जो कि उसमें हर्ब्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, सारे मिनरल्स भी हैं। अगर वो एक सुबह शाम लेते रहें टैबलेट। और मैन के लिए है सुपर मेल फार्मूला है, मेल फार्मूला है। अगर वो डेली एक टैबलेट सुबह शाम ले लें तो उसमें क्या है कि रेगुलर विटामिन के अलावा उसमें हर्ब्स हैं, और जो कि आपके स्ट्रेस के लिए भी हैं, जो कि आप स्टेमिना के लिए, एनर्जी के बढ़ाने के लिए, अगर वो आप लेना शुरू कर दें, प्लस अपने खाने पीने का जो है वो स्केड्यूल रखें और प्रॉपर खाएं पिएं, और रेस्ट जो करें। और टू मच ओवर वर्क करना भी जो है ये इज़ लाइक अ बिग प्रॉब्लम। अगर वही आप ओवर वर्क कर करके और पैसे डॉक्टरों को देते रहें, तो इज़ रादर देन आप रेस्ट कर लें, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और एक दूसरी बात है, जब आप डे ऑफ लेते हैं एक दिन, आई नो सो मैनी पीपल के कभी डे ऑफ ही नहीं लेते, या कभी लेते तो एक डे ऑफ होता है। तो एक डे ऑफ में भी वो उनके घर के काम इतने होते हैं कि वो तो ओवर वर्क हो जाता है, तो कोई रेस्ट नहीं मिलता। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 8 घंटे की रोज काम करें या 10 घंटे रोज काम कर लें, लेकिन 2 दिन रेस्ट कर लें। और रेस्ट का मतलब वाकई रेस्ट, ये नहीं कि घर के काम कर रहे हैं, ग्रोसरी कर रहे हैं, लॉन्ड्री कर रहे हैं, तो वो आप काम जो आप वैसे रेगुलर काम करते हैं उससे ज़्यादा काम हो जाता है, तो वो रेस्ट तो ना हुआ। तो एक दिन रेस्ट अगर करने से बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है। अगर आप 5 दिन काम करें या 6 दिन काम करें, लेकिन अगर एक दिन रेस्ट करें तो रेस्ट कंप्लीट, तो उससे आपकी बॉडी और ये जो टायर्डनेस और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसमें सही हो जाएंगे फिर। अच्छा, ठीक है। और कभी कभी डॉक्टर साहब ये भी होता है ना कि आप टायर्ड इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप इतने एक्टिव नहीं होते, आप सिर्फ बैठे रहते हैं, और उसका भी टायर्डनेस हो जाता है। वो उसके लिए ना मैंने इसलिए कहा ना कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड रिपोर्ट कराएं। हो सकता है थायराइड प्रॉब्लम है उनको, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो उससे भी बहुत टायर्ड फील करते हैं, या डिप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको दिल नहीं करता कुछ करने को। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ डिप्रेशन की, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी अच्छी चीज़ आपको दिल नहीं करता करने को। तो ये सारा कुछ अगर आप डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करवा लें, टेस्ट वगैरह करा के उसके बाद प्रॉपर इलाज हो, तो दैट्स गुड। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। द नेक्स्ट ईमेल सेज, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी एज है 47 और मैं फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेटेड रहती हूँ, मेरे लिए कुछ हल निकालें। तो जैसे मैंने आपको पहले भी सुनते हुए कहा था कि जो कॉन्स्टिपेशन है ये एक मदर है दूसरी बीमारियों की, हाँ जी, तो इसके लिए कुछ मदर ऑफ ऑल डिजीज। हाँ जी। तो कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसके लिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि दवाइयों पे रहते हैं और अपना फूड नहीं चेंज करते जी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको परमानेंट इलाज के लिए जो रीज़न है उसको हटाना पड़ेगा जी। अगर वो फाइबर वगैरह नहीं लेते और वाइट ब्रेड खाते हैं या वाइट आटा खाते हैं, इनफ वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते और खाना उनका सही हज़म नहीं होता, डाइजेशन में ट्रबल है, तो वो तो कॉन्स्टिपेशन रहेगी। और एक्टिविटी भी ना होने से भी होता है कि अगर आप बिल्कुल ही लेज़ी हैं और दूसरी बात है कि अगर बॉडी में आप फूड में आप फैटी एसिड्स नहीं खाते, जैसे मक्खन, बटर वगैरह, देसी घी, वो भी चाहिए हमारी बॉडी को। अगर जो बिल्कुल ही आप छोड़ देंगे फैट खाना तो दैट वुड बी वेरी बैड। तो उनको चाहिए कि सुबह उठ के 1 गिलास पानी पिए, 1 एप्पल खाए करें और रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध करके पिए। अच्छा। और अगर कभी कभार आधी चम्मच देसी घी उसमें अगर मिक्स करके पी लें और इसबगोल का छिलका जो है, सिलियम हस्क, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा। तो हमारे पास जो है वो डिटॉक्स प्रोग्राम आई रेकमेंड यूजुअली कि पूरा सिस्टम क्लीन अप करने के लिए। तो उसमें लिवर क्लेंस है, ब्लड क्लेंस है, कॉलन क्लेंस है, तो वो 2-3 महीने में अगर 1 दफ़ा